Namaskar, Namaskar. Happy November, Happy Diwali. What a morning. It's a Diwali day and chat with champ. Lot of champions who are viewing this program. We are back again with a big blast, we should say. We have important personalities joining today to speak about their childhood days and Diwali. तो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है मेरी मंजिल तो आसमान है रास्ता मुझे खुद बनाना है रास्ता मुझे खुद बनाना है और ये रास्ता बनाने के लिए हमारे बीच देखो कौन कौन आए हैं चैट विद चैम्प पे हम लोग स्वागत करते हैं सो वी हैव विंग कमांडर प्रदीप देशपांडे जी वी हैव कमोडर अभिषेक कनकन सर वी हैव कर्नल वेंकट सर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स त्रिमूर्ति हमारे साथ हैं और मैं सभी को हैप्पी दिवाली कहता हूं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ये जो दिए हैं हमारे विमेन ग्रुप ने बनाए हैं और आईडीएफ के तो आईडीएफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को शुभकामनाएं दीपावली की तो दीपावली और बचपना मुझे मुझे पता है कि हम लोग सब बहुत मस्ती करते हैं शायद आप लोग ने भी बहुत मस्ती की आज हमारे बीच तो एयरफोर्स है आर्मी के पर्सनालिटी है वी ऑल्सो हैव नेवी पर्सनालिटी तो वी वुड लाइक टू हियर अबाउट आपका बचपना और दीपावली कैसा रहा चाइल्डहुड डेज एंड दीपावली कर्नल वेंकट सर वी वुड लाइक टू हैव योर टेक फर्स्ट Good morning. Thank you very much, Dr. Narayan. It's a great, I would say, privilege for me to be here and part of your show, being hosted by IDF. I'm really happy to be here. And firstly, at the outset, let me wish everyone a very, very happy Deepavali. Lots of sunshine and happiness in your lives this year and evermore. So, as far as my earliest reminiscences of Diwali is concerned, I was in a small family of 5 with my 2 elder sisters. I was a pampered brat, the youngest of them all. I used to get the best of crackers. I used to enjoy the red and green variety. I still remember that. And my sisters used to like the fuljaris. So they used to do all the fuljaris. I never really fancied them. I loved the noise making crackers, and the more noise, the better. I still remember one small incident I can tell you all. This was when I was, I think, 10 or 11 years. There was this, atom bomb, Sutli wala, and I tried to be very brave and hold it in my hand and burst it. And for some strange reason, when I was putting it with the agarbatti, it didn't burn properly. So I thought it got off, and I just kept it in my hand. And then suddenly it started going again. In that one split second, I had to throw that, and it actually burst almost in front of my eyes. So it was it was an experience which I really, really remember. It gave me goosebumps. But besides that, yes, I have always enjoyed meeting people, wearing new clothes, eating sweets, and of course, bursting crackers. These are my small reminiscences. That's great, sir. Listening to you, and first of all, Jai Hind and Namaskar to all. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन दिवाली की शुभकामनाएं सबको और बचपन यस कर्नल वेंकट सर की बात सुन के तो मुझे अपना ही डायरेक्ट याद आ गया ऑफ कोर्स वो बचपना नहीं था मैं नेवी इंडियन नेवी में था और एवरेस्ट की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो जैसे अराउंड 2003 तो मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया था अपने राइट हैंड रिंग फिंगर में एंड चिलब्लेंस हो गया था सारे फिंगर्स में और फिर ये दिवाली आई सो क्रैकर्स आई ऑल्सो लव क्रैकर्स तो हम भी उस समय नॉर्मल जला रहे थे फिर एक अनार था वो जल नहीं रहा था तो हमने कहा भाई अनार जल नहीं रहा है तो हम भी ब्रेव हो गए उसको उठाया और हमने उल्टा सामने उसको रख दिया कि जैसे ही होगा मैं सीधा कर दूंगा एंड फ्रॉम बिहाइंड माय फादर इज टेलिंग मी आशु क्या कर रहे हो मत करो आशु मत करो दैट्स माय पेट नेम एंड थर्ड टाइम आई डिडंट हियर हिम बिकॉज़ दैट अनार burst in my hands and you can imagine
that I had, frostbite in my right hand, which is a cold burn, which of course happened in one of the preparatory climbs for the Everest, and a hot burn in my left hand. It was fully, the pain is too bad for both the things. And with the right hand, cold burn, left hand, what do you call, a hot burn, and a dream to climb Everest in 6 months. I mean, it was simply impossible actually. At that stage, in fact, after frostbite, you are anyway dissuaded from going for any further mountaineering because your fingers become hypersensitive. But yes, I didn't give up, and the Navy gave me the best treatment. And yes, in 2004, 2003 was the Diwali in November, and 2004 May, I did reach the summit of Everest with all these things behind me. So one should never give up, and yes, one should not be foolish. We have to be safe, enjoy the crackers, enjoy everything, but keep safety in mind and don't be foolish. So I learned from my own foolishness. That's Great. for now for me, sir. We Commander sir. सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. It's a pleasure to be here among youth and share हमारी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज. तो मैं आपको 2-3 किस्से सुनाता हूँ जो हमारे चाइल्डहुड के थे, जेन्युइनली चाइल्डहुड के थे. एक तो था जब महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशन होती है कि दिवाली के अराउंड एक्चुअली वो वर्क अप टुवर्ड्स दिवाली इज मोर एंजॉयबल देन द दिवाली इटसेल्फ. तो उस वर्कअप में अब यहाँ पे बच्चे लोग इकट्ठे होके किला बनाते हैं, शिवाजी का किला वगैरह बनाते हैं. तो हम लोग सब लोग इकट्ठे होके मेरे नाना नानी के घर के पास वो क्ले वे के साथ सब लगा के शिवाजी का किला बनाया. उस पे अराउंड बोट बनाई, उस पे कुछ शिवाजी के घुड़सवार उसके ऊपर, ये सब करके प्लान था हमारा कि हम इस सब बनाएंगे. और बचपन में यही था कि बस पैसे कमाएंगे, क्योंकि पैसा वाज अ बिग थिंग दैट. तो हम लोगों ने 10-10, 15-15 पैसे इकट्ठे करके जब वो किले की तैयारी पूरी करी, तो हमने सोचा कि चलो इस पे टिकट लगाएंगे हम लोग, कि लोग देखने आएंगे तो उनको 5 पैसे का टिकट देंगे और तब वो देख पाएंगे. उससे हमें तो लगता उससे हम मल्टी मिलियनियर्स बन जाएंगे, पर उस समय वो वही खुशी थी हमारी. तो हम लोगों ने फिर वो किला विला बनाया. और जब तक तो किला गीला था तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था. हम लोगों को क्या सीमेंट विमेंट तो था नहीं, मट्टी से बनाया हुआ था किला था वो. और जब वो हम लोग फिर गए, खाना खुना खा के वापस आए, जो सारा कवर करके गए थे, वापस आए तो किले की दीवारें सारी धूप में सूख के क्रम्बल हो रही थी. तो कोई दुश्मन को आने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप ही किला गिर रहा था. पर फिर भी हम लोगों ने उसको समाव कुछ किया और उस पे हम लोगों ने वाटरफॉल बनाए और मोट सी बनाए उसके आसपास किले के, और बकायदा टिकट लगा के लोगों को दिखाया. खैर आमदनी क्या हुई मुझे अभी तो याद नहीं है, पर मुझे ये जरूर याद है कि जो बच्चे जिन्होंने देखा वो बहुत खुश थे. और उसके बाद जब हमारे पेरेंट्स ने जब आके देखा तो उन्होंने तो डबल प्राइस में आके टिकट हम लोगों के लिए और हमारा दिल खुश करने के लिए उन्होंने हमारे बहुत उत्साह भी बढ़ाया. So that was one very interesting incident that I remember from my और एक बदमाशी वाला इंसिडेंट भी मुझे याद है. खैर वो बदमाशी मैंने करी नहीं थी और आज तक हमें नहीं पता करी किसने थी वो बदमाशी. दरअसल दिल्ली में थे हम लोग, केंद्रीय विद्यालय एंड्रूजगंज में, और स्टैंडर्ड होता था कि दिवाली के छुट्टियों से पहले 2-3 बार ही तो टॉयलेट पे बॉम्ब कोई ना कोई फोड़ता था. और जब वो फोड़ता था जब क्लास चल रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो. तो और प्रिंसिपल और हमारे पीटी सर वगैरह तो देवर द इंचार्जेस, वो एडजुटेंट होते थे कि भाई देखना है कि इस साल कोई ना फोड़ पाए. तो दिवाली की अभी शुरू ही होने वाली थी. दिवाली की छुट्टियों के 2 दिन पहले प्रिंसिपल साहब आए, असेंबली में आए, और उन्होंने बोला कि बच्चों इस बारी दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले अगर मैंने कोई उसी वक्त एक टॉयलेट में एक बॉम्ब, तो प्रिंसिपल डिडंट नो व्हाट टू डू. तो ऐसा था कि बस उस समय हमें लगता था कि यही एक, और चिल्ड्रन वर इन स्प्लिट्स. अब उनको देखते कि बिकॉज the principal is embarrassed by the situation, that was the whole idea. Idea was to create some sort of a chaos. So that was the fun about the work up towards Diwali. बदमाशी थी, अच्छी बात नहीं थी, पर खैर
दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप आई सपोज। और आज भी मेरे ख्याल से स्कूलों में ऐसी चीजें छोटी मोटी चीजें होती होंगी। हमारे प्रिंसिपल को भी मेरे ख्याल से दिल में तो उनको अच्छा ही लगा होगा कि चलो बच्चे खुश हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ तो हो रहा है, पर ही ऑल्सो हैड टू मेंटेन हिज डिसिप्लिन, तो उन्होंने किया। खैर, the children who did it were never caught। वो सुतली के साथ टाइम बॉम्ब लगा के हम लोगों ने वो बनाया हुआ था। But so that is the other anecdote I remember from my childhood, and the final one that I want to share जो शायद हम सब ने किया है वो है कि पोस्ट दिवाली, दिवाली, प्री दिवाली एंड पोस्ट दिवाली। पोस्ट दिवाली वाज गोइंग रमेजिंग थ्रू द लेफ्ट ओवर क्रैकर्स, रास्ते में पड़े हुए हैं, आसपास पड़े हुए हैं, उन सबको इकट्ठा किया, एक न्यूज़पेपर के अंदर उसका सारा मसाला निकाला और फिर उसको जला के जो मजा आया वो पटाखों से भी ज्यादा था कि वो हम लोग ने इकट्ठा करके जो किया था। So that was the fun part of Diwali, which I think all of us must have enjoyed it some. So with that, I will wish all the children, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। अब हमारे कुछ थॉट प्रोसेसेस चेंज हो गई हैं और होनी भी चाहिए कुछ हद तक, बिकॉज नॉइज पोल्यूशन है, क्लाइमेट पोल्यूशन है, तो सेंट्रलाइज अब क्रैकर शो होते हैं या जो भी है वो समय समय की बात है। आप लोगों को कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हमें कुछ, आपको कुछ हैं, तो पर फॉलो जरूर कीजिएगा, जो भी आपके सोसाइटी के नियम है उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। बी सेफ, बदमाशी ठीक है पर अपने आप को बचा के, और मिठाई खाइए, दिवाली की खुशियां मनाइए। थैंक यू सो मच सर, विंग कमांडर सर एंड कमांडर साहब एंड कर्नल सर। इनफैक्ट ऐसा लगे 3 मूर्तियां तीनों फोर्सेस के एक जगह पर दिवाली के दिन आए, तो इससे ज्यादा दीपावली क्या हो सकती है हमारे चैंपियंस के लिए। जो भी ये चैंपियंस हमारे प्रोग्राम आज देख रहे हैं उनके लिए तो एक बड़ा दिवाली है, तीनों फोर्सेस एक जगह पर मिलना, जैसे त्रिमूर्ति है और तीनों 3 प्रांत से हैं। सर एक यूपी से हैं, अभिषेक सर, और कमांडर विंग कमांडर सर महाराष्ट्र से, और हमारे कर्नल वेंकट सर है साउथ से। तो पूरे उत्तर से दक्षिण तक, पूरा पश्चिम, सब लोग एक साथ मिलकर के, क्योंकि दीपावली का महोत्सव ही ऐसा होता है कि हर कोई ये जो फेस्टिवल है मनाता है, इसमें कोई प्रांत, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सब लोगों को एक समानता है। तो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर पीपल अराउंड, चिल्ड्रन पर्टिकुलरली। आई नो हम लोग ये कोविड के समय पर एक कहीं ग्रस्त हो गए जहां पर बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। लास्ट ईयर दीपावली बहुत शांत था, ये साल भी हम लोग को शांत से मनाना है क्योंकि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, काफी कुछ चीज है। तो आप लोग शायद दीपावली कैसा होता है, सब खुले चीज में करना है, सबको आकर के मिलना है, तो क्या सतर्क रहना चाहिए लोगों को। हमारे बच्चे तो है ही है, सतर्क तो रहेंगे ही, लेकिन उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे कर्नल वेंकट सर? हाँ जरूर संदेश देना चाहूंगा मैं कि एक तो जहां तक हो सके भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, क्योंकि आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि उसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन आ जाए, जिसको हमें, जैसे डॉक्टर अय्यर ने सही कहा, सतर्क रहना है। सेलिब्रेशंस आर गुड बट नॉट एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये याद रखें। और दूसरी बात, मतलब वी हैव टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात कि पटाखे एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें। आई नो बच्चों के लिए ये कहना बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या करें, पोल्यूशन इतना हो गया है हमारे यहाँ कि मतलब हमने अपने प्लेनेट को कितना खराब किया है, आप सब जानते हैं। और अगर आप कहोगे कि बाकी चीजों से भी पोल्यूशन हो रहा है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसमें कितना योगदान कर सकता हूँ, ये नहीं कि बाकी सब क्या हो रहा है। आई शुड थिंक ऑफ माई सेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स। सो what can I do to prevent is more important than what others are doing. इतना आप जरूर याद रखिए, फिर आपके ऊपर है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है और आपके मैच्योरिटी के ऊपर है। बस मैं इतना ही कहूंगा एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड पोल्यूशन फ्री दिवाली। थैंक यू सो मच कर्नल वेंकट सर, बहुत ही अच्छा है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई नेशन, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई प्लैनेट, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई है बच्चों के लिए, और हमारे चैंपियन इसको जरूर अमल करेंगे। कमांडर सर, जो मस्ती तो हम लोग करते थे आपने तो बताया ही है, लेकिन अभी लोग पूरे टूट पड़ेंगे बाहर आने के लिए, क्योंकि कोविड लास्ट टाइम सब अंदर रहे। तो हम लोग कैसे, एक ऐसा कोई एनेक्डोट जो आपको कहा गया कि आपके बचपन में कि ये नहीं करना लेकिन आप कर पाए, ऐसा कोई सिचुएशन आया है? जरूर। मैं इनफैक्ट
मुझे एक दो इंसिडेंट्स और भी बताने थे तो मैं बता देता हूँ। तो मेरी छोटी बहन है, मुझसे इनफैक्ट 11 साल छोटी है। तो हम लोग दिवाली मना रहे थे, पूजा वूजा करने के बाद नीचे गए और क्या कहते हैं चरखी, तो शी वुड बी अराउंड मेरे हिसाब से 6 साल की होगी। तो अच्छे कपड़े पहनते हैं अपना, तो शी वॉज वेयरिंग दैट लॉन्ग क्या कहते हैं स्कर्ट, ट्रेडिशनल वाली, और फिर हम लोग जला रहे थे चरखी और अनार वगैरह। तो सडनली उसके स्कर्ट में आग लग गई, सॉर्ट ऑफ नॉट मेजर बट क्योंकि वो स्पार्क्स तो आते ही हैं। तो एनीवे उसको हमने फटाफट बुझा दिया एंड वी कंटिन्यूड। शी इज आल्सो ब्रेव गर्ल, तो वो भी नहीं डरी। बट मैंने फिर उसको बोला तुम आई थी स्कर्ट पहन के, अब जा रही हो मिनी स्कर्ट पहन के क्योंकि जल के थोड़ी स्कर्ट छोटी हो गई। सो दैट इज इट। और जो मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था, RIMC में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। तो वहां भी हम लोग दिवाली मनाते थे, और वहां तो हम लोग ऐसा लगता, हमारे सेक्शंस थे जैसे कि हाउसेस होते हैं स्कूल्स में, तो हमारी दिवाली होती थी दिस हाउस वर्सेस द अदर हाउस टाइप। तो हम लोग सब अपने रॉकेट लेके उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे और जहाँ हम रहते थे बिल्कुल अटैक करते थे। हाँ, अभी थोड़े बड़े हो गए तो लगता है डेंजरस था, बट किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। बट दैट यूज्ड टू बी अ ग्रेट फन कि हम लोग अपना लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं और बॉम्ब बजा रहे हैं। सो इट वाज रियल फन टाइम्स। बट यस, मेरा टेक ये है कि दिवाली आई है, साल में एक बार आती है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट्स अ विक्ट्री राइट ओवर रॉन्ग एंड द काइंड ऑफ एफर्ट विच भगवान राम पुट इन टू इंश्योर जो गड़बड़ हुआ था वो ठीक हो। तो वो हमें सीख लेनी है। और अपना इंडियन ट्रेडिशन है, अपने कस्टम्स हैं, उनमें हमें प्राइड होनी चाहिए, बिकॉज दे आर मोस्ट साइंटिफिक एंड क्या कहते हैं वेरी वेरी इवॉल्व्ड रिलीजन है। और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, दे हैव अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। एंड पटाखे मेरे हिसाब से तो आप उड़ाइए, थोड़ी सी बदमाशी करिए, ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट। और जिंदगी में भी once it's time, हम लोग जैसे फौज में बोलते हैं, once it is time to play hard, once it's time to study religiously, learn your skills properly, and once it's time to deliver with the punch. So whichever stage you are in, once you're having fun, do it, have great fun, not at the cost of others. और अपनी जो पढ़ाई में या जो भी आप सर्व कर रहे हैं वो दिल और दिमाग से जोश लगा के करें। That's it. Happy Diwali to everybody. Thank you so much, sir. Thank you. वी कमांडर प्रदीप सर, आपका टेक क्या रहेगा बच्चों के लिए? जैसे मैंने बोला है और बाकी मेरे दोस्तों ने जैसे बताया है, मुझे ये लगता है कि हमें टाइम के साथ चेंज होना हमारे सबके लिए जरूरी है। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि हमारे वक्त कुछ चीजें नहीं थी, जैसे हमारे पास प्ले स्टेशन नहीं थे, वीडियो गेम्स नहीं थे, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए हम लोग बहुत आउटडोर्स थे, बहुत इन चीजों में थे। उस समय पॉपुलेशन भी कम थी, लोग भी कम थे, तो ये पटाखों का और इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आजकल बड़े बड़े शहरों में छोटी सोसाइटीज हैं, बिल्डिंग्स बहुत क्लोज हो गई हैं, और इस वजह से ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उस वजह से वैसे ही हमारी इधर बहुत बहुत पोल्यूशन हो गई है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली टू हैव ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, जैसे हमारी भी करती है, एक सेंट्रल जगह में थोड़ी देर के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए सब अपने अपने पटाखे लेके आते हैं और एक जगह पे आके बास्केटबॉल कोर्ट में ऐसी ओपन जगह पे आके बजाते हैं। एंजॉय दैट लिटिल पार्ट ऑफ इट, देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड क्रैकर शो। उसके बाद सब अपने अपने घर जाके अपनी चीजें करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, यू कैन डू योर ओन थिंग्स। तो आई फील वी नीड टू अडैप्ट। जो पहले होता था वो आज हो नहीं सकता, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा, और इसी में हमें अपने आप को खुश रखना है, और अपने आप को मेंटली भी खुश रखना है,
और ट्रेडिशन को भी प्रिजर्व करना है, उसको इस तरह से हम प्रिजर्व करें, ये हमारी इंजेन्युइटी है, हम किस तरीके से कल्चर को प्रिजर्व करते हुए क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करें। और आप लोग यूथ हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर गोइंग टू इनहेरिट दिस प्लैनेट. We will not be here for maybe another 20, 30 years. You'll probably be here for another 50, 60 years, maybe more. So just keep that in mind. And if you keep that in mind, automatically the decisions you will arrive at correctly. अगर हमें पता है कि ये मेरा future है, तो हम future के लिए prepare जरूर करेंगे, अच्छी तरह करेंगे. So that is what I would like to convey to the youth. Happy Diwali, enjoy yourself. But I remember one of the hikes we went in the Garhwal area अराउंड दिवाली, तो पहली बार मुझे वो वाले बॉम्ब मिले जो कि आप लीजिए और सड़क पे मारिए और फट होता था. तो दे वर वेरी सेफ एंड दे वर वेरी गुड. तो उसमें मतलब आपको जलाना नहीं है, वो सब कुछ नहीं है. और एज अ बच्चा वो मुझे अभी भी याद है कि हाँ, पहली बार मैंने गढ़वाल में ही वो देखे थे. हमने खूब खरीद के खूब बढ़िया मजा किया था उनके साथ. अपट बॉम्ब बोलते हैं. अपट मींस टू कोलाइड. So अच्छा, अपट bomb, हाँ. Appet bomb. So you would throw that on the road or on the floor and it would just go. Yeah, that was very nice. So I don't know, you have climbed the Mount Everest now. Yeah, fantastic. Congratulations, superb. Thank you, sir. 2007. 2004, sir. Something. Yeah, it was the first Navy team in the world, any naval team in the world to have summited Everest. So we were a team of 13 of us, 5 of us summited, or we had been launched or flagged off from a submarine, so underwater, dived submarine. So then Defense Minister Mr. George Fernandez had come and into the submarine, and we had dived in the Arabian Sea, and then he had flagged us off. So it was sort of it's a world record, standing record, that we started from underwater and we scaled Everest. Is there a list or some register of the number who are the individuals who climbed the Everest? Anywhere in the records maintained? Yes, records are maintained. How many people would have done it by now? By now, around, I don't know the accurate figure, but around 3,000, I think, people would have climbed from the very first time. Who have climbed? Just 3,000. There are so many climbers in the world actually today. Correct. Like once we went, base camp was flooded with climbers. As you keep going up, the number of people keep reducing. And yes, I mean, sometimes there are casualties. So, like the year I climbed, there were around 8 casualties. Luckily, not from our group or Indians. But anyway, climbers are climbers, and it was sad that 8 people had lost their lives while attempting to climb. But Diwali is also the time once all the Rangoli skills also come into play. So my daughter went and sort of learned how to make a Rangoli. So she is also looking forward कि building के नीचे, जैसे आपने बोला एक जगह है, तो नीचे वाली भी रंगोली. My wife also last year also. So Rangoli with flowers or Rangoli with those colors. Yeah. So they are going to be making. So all that is very nice, artistic. In fact, this time she is doing glass painting. तो जो सोसाइटी के जो ग्लास जो है, तो इट कैन बी रिमूव लेटर, तो उस पे भी शुरू कर दिया है. दैट आई थॉट वाज अ नाइस थिंग विद ग्लास पेंटिंग दे हैड डन दैट. यस, फ्लाइंग विद whom, sir, currently? Currently, I'm flying with a private company, startup company. It's called MAB Aviation. They've got the office in Villeparle. So I'm flying a small turboprop aircraft called the King LC-90, Beechcraft car. So we do charter flights and we do air ambulance, medical flights. Okay. So that's what I started after I retired from Air India last year. Okay, Air India. Okay. After I left the Air Force in 2004. And then joined Air India for 16 years. I flew in Air India, and then I retired from Air India last year, and then I joined it. It was nice hearing your story, sir. Now, can we your message, because the youth are little perplexed.
यूथ आर अनअवेयर व्हाट टू डू, वेयर टू गो। ये पैंडेमिक उन्होंने देखे नहीं अपनी जिंदगी में, ना ही किसी ने देखा है। जिंदगी का क्या कैरियर प्लान, व्हाट शुड बी योर मैसेज? क्योंकि क्या लोग आसानी से लेना है? कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को तो मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को तो मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और आप तो लड़ते रहे देश के लिए। मुझे हमारे यूथ के लिए एक संदेश इस दीपावली के अवसर पर सर। बहुत बढ़िया, आपका हिंदी बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट आई एनवी यू। वेल, जो भी है पेंडेमिक हुआ जो हुआ, बट मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट टाइम है। जो लोग अभी यूथ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी पहले कभी नहीं थी, और हमारा देश भी अब एक टेक ऑफ कर चुका है और कोई हमें रोक नहीं सकता। मुश्किलें आएंगी, यस, हमें उड़ना है तो मुश्किलें तो होंगी, क्योंकि या तो हम आसानी से बैठ सकते हैं या मुश्किलों को झेल के ऊपर उठ सकते हैं। हमें अपना कल्चर, अपने हेरिटेज, अपनी सिविलाइजेशन में प्राइड होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान, ये भारत देश बहुत बहुत मतलब कितने हजारों साल से पहले से बहुत ही बुलंदियों पे था, और अभी वापस टाइम आ गया है कि हम अपने पैर पे खड़े होके और इसको वापस उस बुलंदियों पे ले जाए, जो हम बोलते हैं कि सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारा देश। सो हमें अपने देश के बारे में, अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर, अपने रिलीजन्स के बारे में प्राइड होनी चाहिए, और हमें हार्डवर्क करना है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव है ये दुनिया, तो जो भी करें मन लगा के करना है, अच्छे से प्रिपेयर होके करना है, और माइंड को पॉजिटिव रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह निगेटिविटी हर जगह आपको मिलेगी। जैसे कि हम लाई में जाते हैं या पहाड़ चढ़ने जाते हैं, तो वेदर इज नॉट गुड, देयर इज कोई रास्ता नहीं होता जाने का, आपको चोट लग जाती है, कोई कीड़ा काट लेता है, मगर हम उस समय ये नहीं सोचते। हम कहते हैं ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ये दुनिया है, तो ये नहीं होता तो फिर मजा ही कहाँ आता। तो जो कठिनाई है उनको पॉजिटिवली लेना है, और नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, और ये रोज हमें करना है। नेगेटिविटी इज लाइक अ वेलक्रो, ठीक है, वो चिपक जाती है, बट हमें उसे क्लीन करके और आगे बढ़ना है। बी हैप्पी एंड एम हाई एंड वर्क टुवर्ड्स इट। तो यही मैं यूथ को कहूंगा, और ये बहुत सबसे अच्छा समय है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश भी ऊपर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं ऑल राउंड। सो हमें पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम क्यों नहीं परफॉर्म करें, और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने एरिया का नाम और इस देश का नाम ऊपर ले जाएंगे। दैट्स इट। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है सर, बहुत अच्छा मैसेज कि हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा 24/7। लोग कहते हैं हमें मेरे ख्याल से 28/8 रहना चाहिए, अभी 24/7 से ज्यादा समय बढ़ाना चाहिए, हफ्ते का समय बढ़ना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेटिंग भी रहना बहुत जरूरी है। रनवे में हमेशा सर रहते हैं, विंग कमांडर साहब तो हमेशा रनवे में रहते हैं, उनको तो रनवे दिखता है और आकाश दिखता है। सर आप कमांडर साहब, आप तो सबमरीन से, मतलब दोनों तरफ से अगर नाप तोल करें, क्योंकि सक्सेस हर जगह आपको दिखना है, तो रनवे ऑफ सक्सेस क्या होता है विंग कमांडर सर? तो मैं कहना, मैं यूथ को यही बताना चाहता हूं कि जब आपकी पैशन या जो आप करना चाहते हैं वो अगर आपका काम बन जाए, जो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो देयर इज नो टर्निंग बैक। I mean, every single day, if you are being paid to do your hobby or to do what you like to do, there is no better situation than that. So how do you arrive at that situation? This is what happened to me at least. मैं बचपन से चाहता था कि मैं पायलट बनूं, और आज तक 40 साल से मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ, और आज भी मुझे लगता है जिस दिन मैं फ्लाइंग करने जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं फ्लाइंग करने जा रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है, इट शुड नॉट ओनली आज, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, उनको ये कुछ टाइम लेके ये सोचना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसको दिल लगा के कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए।
क्योंकि जब तक आप वो नहीं कर पाओगे तब तक आपका रोजमर्रा की चीजें आपके लिए ड्रैग बन जाएंगी, और वो ड्रैग बनेगी। डोंट फोकस ऑन मटेरियलिज्म, डोंट फोकस ऑन द मनी। मनी तो आपके पीछे आ ही जाएगा, वो किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा, और मनी कभी इनफ नहीं होता है, और यहाँ पे जितना मनी होता है वो भी बहुत होता है। इट्स अ मैटर ऑफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक what you should do and what focus upon is थोड़ा टाइम लीजिए, मेंटोर्स के पास जाइए, टीचर्स के पास जाइए, सोचिए आप करना क्या चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं एक बारी आप उस रनवे पे अगर आप आ गए तो रनवे से उसको जो आप टेक ऑफ करेंगे, आपको मनी नहीं करेगा वापस आके लैंड करने का, आप सॉरी करते रहोगे, सॉरी करते रहोगे। तो टेक योर टाइम एंड फाइंड व्हाट यू लाइक, व्हाट यू थिंक इज गुड फॉर यू। और बेशक बीच में चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ शायद आपको लगेगा कि ऐसा है वैसा है, शायद चेंज करना पड़े, तो स्वयं चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं। पर ऐसे काम में दिल लगाइए, ऐसे काम में सोर्स ऑफ इनकम बनाइए जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। आजकल फैशन हो गया, अरे मंडे आ गया है, क्या सिर दर्द हो गया है मंडे के, यू नो पीपल डोंट लुक फॉरवर्ड टू देयर वर्क, और जो पीपल एंड दे थिंक इट्स अ गुड थिंग। बोले रेडियो पे भी वो तो फ्राइडे हैज कम, लेट अस सेलिब्रेट, वीकेंड हैज कम। पीपल शुड सेलिब्रेट मंडेज। Arey, Mondays come, I'm doing, my challenges have come in front of me, how I'm going to solve this, how I'm going to go through this week. That is what has to be celebrated, not Saturday, Sunday तो हर कोई celebrate कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आपको अपने काम में दिलचस्पी है तो आपको सैटरडे संडे लगेगा कि कब खत्म हो सैटरडे संडे और कब मैं मंडे आया और कब मैं अपने काम पे चलूं। तो इस तरीके का काम अपने आप के लिए ढूंढिए आप लोग, कैसा भी हो, छोटे से छोटा काम हो पर इंटरेस्टिंग काम हो, आपको उसमें दिल लगे, ऐसा काम कीजिए, आपकी जिंदगी मेरे हिसाब से तो बहुत सफल होगी। ग्रेट सर, वंडरफुल मैसेज। सेलिब्रेट एवरी डे को आप सेलिब्रेट करना है, बहुत अच्छा मैसेज रहा सर आपका। एंड पीपल शुड, अगर कर्म ही आपका पैशन एंड प्रोफेशन दोनों एक साथ मिल जाए तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। कहते हैं कि कर्म कर जिक्र न कर, कर्म कर जिक्र न कर, शुक्र कर कि हम लोग सब ठीक है, फिक्र मत कर, शुक्र कर फिक्र मत कर। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने दीपावली के महोत्सव पर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस प्रोग्राम में आए और दीपावली की शोभा बढ़ाई। और सभी निवासी जो यहाँ पर चैट विद चैम देख रहे हैं और बाद में भी जो देखेंगे, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपों से फिर से एक बार आपको मैं दीपावली का शुभेच्छा देता हूँ। हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद एंड जय हो। जय हिंद, जय हो। जय हिंद।